So okay, it's already 4, and without wasting much of our time, I guess we should start. So first of all, good afternoon each and everyone. And today's session is about creative CV building. So ये जो session है, I am not just going to teach you about the formatting of CV, but CV के formatting के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है. So I'm going to share that things. I'm going to share 3 CV templates. Already उसकी link जो है मैंने description में रख दी है. You can just simply click on the description and you can see a Google Drive link. Click on that. उसके अंदर मैंने PPT के फॉर्मेट में, वर्ड के फॉर्मेट में, एडिटेबल फॉर्मेट्स में CV के PPT रखे हैं फॉर्मेट सारे, and you can use whichever you like. Okay. After that, we are also going to check the CV score, quality of CV score, how to check those things. Then few tips for formatting and principle of Mr. Tree. ये जो principle है ना सबसे ज़्यादा important है friends. So without wasting time, let's start. So this will be the flow of the session. First of all, we'll be understanding what are the rules for making a CV. Then we'll be going for types of CV. After that, formatting in CV, and after that, we'll be checking the CV scores. So first of all, there are no rules for making a CV. Okay, try to understand these things, friends. It's all about your creativity. Okay, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, कोई न्यूटन का लॉ नहीं है, ठीक है, कोई थियरम्स नहीं है कि सीवी इसी प्रकार से बन सकता है. ये चीजें हमें पहले समझनी पड़ेगी. ओके, कोई कहता है नहीं ये रूल है, आपको सीवी में ये चीजें रखनी चाहिए होती है, आप इस ये फॉर्मेट में नहीं दे रहे हो, दिस इज रॉन्ग. समझ लो, देयर आर नो डिफाइंड फॉर्मेट और यूनिवर्सल रूल्स फॉर सीवी. ओके, इट इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी. Try to understand these things, friends. Okay, so make it clear, there are no rules. Okay, now let's move to the second part, types of CV. हम लोगों को पता ही नहीं होता, सिंपली जो फ्रेंड्स लोगों ने सीवी दे दिया, सिंपली एडिट कर लिया, उसमें किसी प्रोफेसर ने शेयर कर दिया, we'll just edit those things and we'll keep forwarding it. That is the biggest mistake that we are doing it today. Okay, yes, there are types of CVs. Okay, the first one is simple CV कैसे कहते हैं? So I'll show you. This is called a simple CV format. Okay, यहाँ ऊपर आ जाएगा आपका नाम, your contact details, okay, career objective, work experience जो होगा अगर है तो, otherwise your project details. Simple. Okay, nothing more is mentioned over there. There are no colors, you will be not able to find any colors over there. So this is called a simple format of CV. Okay, no colors, no tables, no images. That is called a simple resume or a CV. Then comes the infographic. Okay, it's also known as modern CV, and it's full of colors. अभी आप ये पूछोगे सर what is infographic? Infographic is nothing but a visual, I can say a visual representations of data in forms of charts, diagram, images. Okay, that is called infographic. So infographic CV का I'll share the format. I have also shared this format with all of you. Okay, ये आपके पास ऑलरेडी ड्राइव के अंदर मैंने ये फॉर्मेट शेयर करके ही रखा है. सो दिस इज कॉल्ड इंफोग्राफिक सीवी. सिंपली 1 पेज का है. ओके, यहाँ पे देखिए फोन, सिंपली सिंपल फॉर्मेट में भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर होगा, तो वहाँ पे सिर्फ लिखा होगा मोबाइल नंबर और फोन, एंड देन विल मेंशन इट. ओवर हियर व्हाट वी हैव डन इज, यू कैन सी एक आइकॉन रख दिया है टेलीफोन का, मेल के लिए एक एनवलप रख दिया है. सो ओके, इट लुक्स अट्रैक्टिव. Okay, modern, whatever you say, colorful, there is an image. Okay, there is a name का format भी अलग है पूरा. नीचे what is the basic profile that person is handling. Okay, what are the pro skills के अंदर भी easily infographic way में लिखा है. Okay, WordPress, तो WordPress में she is very good. HTML, okay, she is good. JavaScript, she is excellent. So this is the visual representation basically. Infographic is nothing but visual representation. Okay, then comes the video resume. Video resume जो है, actually it's not a new concept. I guess before 4 or 5 years, yes, almost 4.5 years, I had tried that. And उसके पहले भी है, 2010-11 में भी video resume बनते थे. So it's nothing new, but I don't know why people are not accepting it and even not trying it. It's a very good concept. People can understand your communication skills and how much confident you are
थ्रू लाइक आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो वीडियो रेज्यूम में, बट स्टिल पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. बट या ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट. मैंने भी खुद का बनाया है एंड इट्स देयर ऑन दिस चैनल ओनली. यू कैन सी दैट इट्स लॉन्ग. Of course, you cannot make a video resume of 5 minutes, 10 minutes, something like that. You can make it very short, like 2 to 3 minute basic introduction. That's it. Okay. Then comes the best CV that I am going to recommend each and every one to you. That is a smart CV. Smart CV क्या होता है? It's a concept that मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, जो simple और infographic का mixture है. It's kind of पाव भाजी. Okay, I'll show you that as well. So this is called a smart CV. Okay. Over here there is my career timeline, जिसके अंदर I have used different types of infographics. core skills के अंदर I have used charts. Okay, so I have used diagrams. I have done this in Excel and then I have pasted it over here. So it's a mixture. And if I just scroll it down, my achievements, my work qualification and all, बेसिकली ये सब मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है. दैट यू मे फील इट सिंपल, बट यहाँ कंपनी के लोगो भी लगाया है. अगेन, कंपनी का लोगो लगाना लीगल है या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन आता है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू कीप इट और नॉट. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट यूज योर कंपनीज लोगो लाइक दिस. ओके, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है टू जस्ट लेट यू नो. बहुत लोग लोगो इजीली लगा देते हैं, बट इट इज नॉट लीगल टू यूज अ कंपनीज लोगो लाइक दैट. कंपनी कैन sue यू फॉर दिस. ओके, सो ये गलती नहीं करनी है. करना है आपको, कर सकते हो, उसमें कोई मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप नहीं कर सकते हो. ठीक है, रेज्यूम जो है वो बहुत मतलब आप HR को ही डायरेक्ट जाएगा या तो कोई पोर्टल पे अपलोड होने वाला है. कंपनी तक ये रेज्यूम जाने के चांसेस कम है, बट यू कैन इग्नोर इट इफ यू कैन. ओके, सो दिस इज नथिंग. दिस इज द स्मार्ट CV, फ्रेंड्स. ओके, so these are the basically 4 types of CV, and you need to decide that which CV you should go for. Infographic is very common if you're belonging from, if you're a fresher. First of all, agar you're a fresher, you're from an IT background or a BE background, that is engineering background, you should go for this infographic. Okay, if you're going to work in manufacturing units, you should go for the simple formats. And if you don't want to, if you like नहीं मुझे infographic चाहिए, तो mixture like smart CV, use of मतलब both the combination you can go for. Okay, so basically smart CV क्या है? Okay, ये मेरी खुद की definition है friends. Smart, S that is for simple, क्योंकि इसके अंदर जो आपका work experience and all है, you are going to mention it in very simple words. Okay, and for modern, because yes, you need to use photographs, infographics, tables and all, so that becomes modern. A is for accurate spelling. Okay, so आगे भी मैं ये चीज कवर करने वाला हूँ कि मोस्ट ऑफ द CV, 80% ऑफ द CV में जो रिजेक्ट होते हैं उसका बेसिक सबसे पहला रीजन होता है स्पेल एरर्स. ओके, तो स्पेल एरर्स को आपको बहुत ध्यान रखना है. आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो भी शायद स्पेल एरर होने के चांस, ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, देन R इज फॉर रियल, बिकॉज रियल मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक में मतलब कैपिटल में जानबूझ के लिखा है, बिकॉज certain times what happen is we are trying to show something what we are not. Okay, so be real, show what you are. ठीक है, if you are very good at Excel then mention you are very good at Excel. If you are not knowing about Excel और आपका knowledge इतना अच्छा नहीं है, then don't mention it, or just mention you are like a beginner. ठीक है, तो अगर जितना आप जो रियल है वही दिखाओ, don't make it like fake. Okay, real नहीं, हमें real जो CV है वो रखना है. And T for technological. Even technological is very important nowadays, whether you're a fresher or an experienced person. ये जो technological है ना बहुत important है आज के टाइम में, whether you're knowing SAP, Excel, PowerPoint presentations, SPSS or any other software like Power BI, Google Data Studio. That are the things that industry is expecting from someone nowadays. Okay, and it is not like कि अगर आप mention नहीं करोगे तो आप ignore हो जाओगे, but yes, if you're going to mention those things in your CV, that will be a value addition. Okay, so technological पे भी थोड़ा मैं बोलूँगा आप focus कीजिएगा, because if you are knowing, suppose I'll take an example of SAP. If you are aware how to use SAP, then to be very honest बहुत कम industry में SAP use होता है. ठीक है, और अगर आपको SAP आता है, then your CV will be in top 10 CVs जब sourcing होने वाला है. ठीक है, HR वो साइड पे रख देगा, okay, this person is knowing SAP, because that's a
गुड आई कैन से टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड कि चलो आप एडवांस में दिखा रहे हो कि आपको ये चीजें आती है, राइट. So now we'll talk about directly formatting of the CV. I'm not going to waste much of your time. Very straightforward, जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको to the point बात करने वाला हूँ. Formatting of CV. Okay. So सबसे ज़्यादा now we'll be directly focusing on formatting of the CVs. जैसे कि मैंने आगे स्लाइड्स में दिखाया था, फॉर्मेटिंग ऑफ सीवी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्पेल एरर्स. तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि यार मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है नहीं हो रही है. ठीक है, एक तो रेड कलर का आप देख लोगे. लेट मी चेक मेरे यहाँ पे कहीं पे आ रहा है या नहीं. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो. सो यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट इज सेइंग मी कि यार देयर इज अ स्पेल एरर ओवर हियर. तो कैसे पता लगे कि स्पेल एरर है या नहीं, तो उसके लिए वेरी सिंपल, गो टू द रिव्यू. यहाँ पे रिव्यू है, वहाँ पे क्लिक कीजिए. ठीक है, एंड गो टू द एडिटर. आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिटर, एडिटर इज गोइंग टू शो यू ऑल योर मिस्टेक्स. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक कितनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कितनी है, एंड व्हाट इज द एडिटर स्कोर. एडिटर स्कोर इज नथिंग बट ओवरऑल वो एनालिसिस करेगा कि ओवरऑल थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ कितना क्लैरिटी के साथ आपने चीजें मेंशन की है, एंड दैट विल गिव यू अ स्कोर. 80 to 85% is good, 85 to 90% is very good, and 90 के ऊपर होगा then it is excellent. तो please just go for this editor version. उसमें आप क्लिक करके चेक नॉट जस्ट स्पेलिंग, हाँ, इवन द ग्रामर मिस्टेक्स. क्लिक ऑन ग्रामर और यहाँ पे वो मुझे दिखा देगा कि चलो यहाँ पे एक कॉमा आगे आएगा, आपने एक स्पेस छोड़ा है. सो दीज आर द थिंग्स यू नो ईच एंड एवरीवेयर. जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, एक्सेल की तरह ही वर्ड इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प मी. ठीक है, कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स की है. सो दिस इज एक्सीलेंट फीचर्स. प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आपको कैसा लगा ये एडिटर वाला वर्जन, कैसा लगा. प्लीज लेट मी इन द चैट बॉक्स में बताइए मुझे, प्लीज जस्ट लेट मी नो. सो ये बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए पूरा सीवी मैंने बनाया है. बहुत सारी गलत चीजें भी अंदर लिखी है. सो द ओनली रीजन इज आई कैन शो यू कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है इसके अंदर. सो प्लीज इन द चैट बॉक्स मेंशन. नाउ विल टॉक अबाउट द अलाइनमेंट. ओके, अलाइनमेंट के अंदर भी रिव्यू के थ्रू ही आप जाओगे. ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन द रिव्यू. Okay, and how to check the alignments. Alignments are very important. Okay, आगे मैं बात करने वाला हूँ about ATS. That is the most important things and hardly very few people are knowing about it. Okay, so ATS is nothing. It's not anti-terrorist squad, but it is about application tracking system. So application tracking system में अगर कोई बाधा बनती है हमारे CV की, ठीक है, तो वो होते हैं सबसे पहले alignments. बिकॉज हम ठीक से अलाइन नहीं किया होता है हमने चीजें, हमने टेबल भी डाल दिया लेकिन अलाइन नहीं हुआ, फॉर्मेटिंग अलाइन नहीं की है. तो हाउ टू नो दैट? सिंपली कम टू द रिव्यू एंड क्लिक ऑन चेक एक्सेसिबिलिटी. ओके, क्लिक ऑन दैट. ईच एंड एवरीथिंग वर्ड इज गोइंग टू टेल यू. ठीक है, कि भाई यहाँ पे देखते हैं मिसिंग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो 40 है ऐसे, एक के बाद कहाँ कहाँ है. सो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके सही है या नहीं. राइट, वेरी सिंपल फ्रेंड्स. रीडिंग ऑर्डर, इवन वार्निंग्स, द एरर्स एंड वार्निंग्स, दो अलग अलग सेक्शंस के अंदर वो लोग बताने वाले हैं. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, हार्ड टू रीड टेक्स्ट. ठीक है, कौन सा है ऐसे, तो पेज. तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पेज जो है वर्ड इज टेलिंग, उसका टेक्स्ट है वो थोड़ा लाइट है, इट इज डिफिकल्ट टू रीड. सो इतना तो मतलब वर्ड हमें हेल्प कर रहा है, राइट. सो दिस फीचर इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. नाउ लेट अस कम टू वन मोर थिंग. आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट बहुत बार क्या होता है जब हम लोग सीवी बनाने बैठे हैं तो कुछ चीज़ें कैप्स में हो जाती है, कैपिटल में हो जाती है, कुछ लोअर केस में हो जाती है, और उसको हमें अलाइन करना है एक साथ. तो सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट द लाइन्स दैट यू वांट टू चेंज, एंड होम टैब में, ठीक है, यहाँ एक बड़ा ए होगा एक छोटा ए होगा जिससे आप साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हो, एंड उसके बाजू में आपको और डबल ए दिखेंगे जिसे कहते हैं चेंज केस. सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड आप उसको अगर पूरा लोअर केस में करना चाहते हो तो पूरा लोअर केस में कर सकते हो, पूरा अपर केस में अगर सेंटेंस को चेंज करना चाहते हो पूरा अपर केस में कर सकते हो. ठीक है,
यू कैन कैपिटलाइज ईच एंड एवरी वर्ड, अगर आपको ऐसा कि नहीं जस्ट फर्स्ट जो वर्ड है उसको ही कैपिटलाइज करना है तो यू कैन इवन डू दैट, ठीक है। आफ्टर दैट टोगल केस, ओके, दैट इज ऑल्सो दैट कि आपको अगर सेकेंड फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड को अगर बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हो। सो आई गेस दिस फीचर आपको पता है या नहीं पता नहीं, बट यू कैन यूज इट, ओके। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग द फॉर्मेट्स दैट वेन एवर आप आपका CV आप एडिट कर रहे हो, यू नीड टू गो टू द व्यू, ओके। व्यू में जाना है सबसे पहले। अगर रूलर पे अनटिक है, ठीक है, सपोज रूलर पे अनटिक है, मैंने अभी अनटिक कर दिया है, देन टिक ऑन इट। रूलर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप कितनी मार्जिन छोड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये फॉर्मेट आप देख रहे हो, बिकॉज ये भी जितना अगर आप चाहते हो या 2 या 3 पेजेस में ही आपका CV आप खत्म करो, तो यू विल नीड मोर स्पेस इन योर CV, एंड फॉर दैट आपको मैन्युअली फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू नीड रूलर। सो क्लिक ऑन रूलर एंड आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आ जाता हूँ मार्जिन पे, एंड सिंपली मुझे जिस हिसाब से मार्जिन चाहिए आई कैन चेंज इट, राइट। सो दैट इज वन मोर थिंग। अनदर पॉइंट कि आपके जो फोन्स है जो आप यूज कर रहे हो थ्रू आउट योर CV, इट शुड बी सिंगल फोन। लाइक अगर कैलिब्री यूज कर रहे हो तो सब में कैलिब्री यूज करो, अगर न्यू टाइम्स न्यू यूज कर रहे हो तो सब में टाइम्स न्यू करो, ठीक है। कोई एक ही आप सिलेक्ट करके सब में सेम ही आपको रिपीट करना है, ओके। ऐसा ना हो कि ऊपर कुछ अलग फोन सिलेक्ट कर रहे हो नीचे अलग कर रहे हो। हाँ, साइज आप जैसे हेडर दे रहे हो तो उसमें साइज आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, उसमें दैट्स नॉट एन इश्यू, बट फोन जो है वो सेम रखिएगा, ओके। So let me know friends whether you are liking it or not, please. Now we'll be coming to the most important part, that is ATS. Okay, आप please chat box में आपको जो भी question है you can type. So ATS, this is specifically for Sunil. Sunil has asked me about this and I was glad he is knowing about it, because half of the people, half नहीं बोल सकता, at least I can say 90% of the people are not aware about it. Basically, application tracking system is a software that manages the recruiting and the hiring process, including job posting and job applicants. ठीक है, तो ATS और हमारा CV का क्या मतलब कनेक्शन है, पहले तो ये समझना है ATS करता क्या है। ATS क्या करेगा कि सपोज आई एम पोस्टिंग अ जॉब, ओके, आई एम पोस्टिंग अ जॉब रिगार्डिंग अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने पोस्ट किया आई नीड एन मैकेनिकल इंजीनियर हु इज अ फ्रेशर एंड आई विल मेंशन द कीवर्ड्स इन द बुलेट सर्च। नौकरी के अंदर बुलेट सर्च करके एक टैब है जिसके अंदर आई विल मेंशन द कीवर्ड्स कि मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, ओके, उसके की स्किल्स क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, आई विल मेंशन ऑल दोस थिंग्स, and Naukri is going to provide me the result, okay, as per the CV जिसमें वो keywords mention होंगे। Now we are going to see, I'll be very straightforward to all of you and honest with all of you। बहुत बार क्या होता है हमारा CV अच्छा है, ठीक है, if you will see this CV ना, फर्स्ट टाइम अगर देखोगे अरे यार एक्सीलेंट CV है, देखो पहाड़ बनाया है, चार्ट्स बनाए हैं, टेबल्स है, ठीक है, अचीवमेंट्स मेंशन किया है, वर्क एक्सपीरियंस है इतना अच्छा, बंदा शॉर्टलिस्ट हो ही जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई अपलोड दिस CV नौकरी पोर्टल पे अगर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, देन चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इज वेरी लेस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है, ATS जो है ना, जब आप इंफोग्राफिक यूज करते हो आपके CV में, दे आर नॉट एबल टू ट्रैक इट, ओके, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। Simply try it once, make a simple CV with bullet points and upload it on your Naukri, wait for a week and I'm sure you're going to get मतलब into twice response तो आपको ज़्यादा मिलने ही वाला है कम से कम, because आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। ATS जो है ना वो इमेजेस को रीड नहीं कर सकते, टेबल्स को रीड नहीं कर पाते, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे ये जो मैंने अलाइनमेंट्स बॉर्डर डाले हैं, अलग कलर्स में डाले हैं, ये रीड नहीं कर सकते, ओके। सो दैट इज द रीजन कि अगर आप जॉब पोर्टल्स पे अगर आप CV रखना चाहते हो आपके, देन यू शुड गो फॉर द सिंपल फॉर्मेट्स ओनली। और इन्फोग्राफिक अगर थोड़ा बहुत डालना है डाल सकते हो, जैसे कि सपोज यू कैन सिंपली
एड दिस कोर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, एक टेबल डाल सकते हो, बट नथिंग मोर देन दैट। बाकी आप जो भी डालो आपको सिंपल फॉर्मेट में ही डालना है विद द बुलेट पॉइंट्स, बिकॉज एटीएस जो है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है, वो बुलेट पॉइंट्स को ही कैप्चर करती है। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर द नौकरी पोर्टल और मॉन्स्टर पोर्टल और लिंक्डइन। आप अगर इंटरनेशनली भी कहीं पे अप्लाई कर रहे हो देन बुलेट पॉइंट्स आर कैप्चर्ड फर्स्ट। तो बहुत बार ऐसा ही होता है जब आप एफसी वेबसाइट पे आपका सीवी अपलोड करते हो देन यू मस्ट हैव सीन कि आपकी कंपनी का नाम आपको नहीं दिखेगा, बट यस आपने बुलेट पॉइंट्स में अगर आपकी जॉब प्रोफाइल मेंशन की है देन यू विल बी एबल टू सी दैट। दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड दैट। सो ऑफ कोर्स इफ यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग समवेयर, मेक अ सीवी लाइक दिस, but if you want to apply it through any portal then bullet points में ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में आप डालिए एंड देन अप्लाई इट। एटीएस के लिए ओके, सुनील पाटिल इज आस्किंग विच फॉर्मेट इज मोस्ट सूटेबल फॉर एटीएस। ऑफ कोर्स नॉट जस्ट फॉर एटीएस, आप कहीं पे भी अप्लाई करो, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल हो, you should always upload your CV in Word format. I'm again repeating, it should be in Word format, not in PDF, not in PPT, not in JPG. It should be in Word format. The only reason is Word format में it becomes very easy for any application to track your keywords. ठीक है, नौकरी पे भी अगर Word format में आप रखोगे आपका CV, then it becomes easy for them to track the keywords and इस हिसाब से रिजल्ट में जो है आपकी रैंकिंग टॉप 10 में तो आ ही जाएगी अगर सारे कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं तो। ठीक है, आपको उसका अलग सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटीएस पार्ट। ठीक है, ओनली लर्निंग फॉर यू गाइज इज कि आप लोग बुलेट पॉइंट्स अंदर प्लीज रखिए। बुलेट पॉइंट्स किसे कहते हैं, अगर ये भी आपको क्वेरी है सपोज, सो दिस आर द बुलेट पॉइंट्स। ओके, कैसे बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं अगर नहीं पता तो बता देता हूं सिंपली। ओके, यहाँ पे मैं I'll do it. होम पे जाके बुलेट्स में जाके select it and then mention. This is the way you can add a bullet point. Okay, सब कुछ बुलेट में ही रखिएगा, that is what I am recommending. And then we'll talk about the perfect sequence of CV. Okay, CV का एक perfect sequence होता है, that's a question mark for everyone. होता है क्या? Yes, it is there should be a perfect sequence है। सबसे पहले there should be your personal details that you guys should mention. Okay, कि आपकी personal details क्या है, name, जैसे कि we'll see over here. Okay, again your personal details, name, यहाँ पे मैंने जैसे कि मेंशन किया है। इस हिसाब से आप अगर एटीएस की बात कर रहे हैं तो या वहाँ पे आप ऐसा फॉर्मेट नहीं रख पाओगे। ठीक है, आप सिंपली आप सिंपल फॉर्मेट में आपका नाम, नीचे आपका टेलीफोन नंबर एंड देन योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड योर मोबाइल नंबर। प्लीज मेक श्योर कि आपका एड्रेस एंड मोबाइल नंबर जो है वो एक्यूरेट हो और दोनों अलग अलग रोज में आप डालो। उसके बाद आता है या तो समरी या तो ऑब्जेक्टिव। इफ यू आर अ फ्रेशर यू शुड गो फॉर ऑब्जेक्टिव एंड इफ यू आर अ एक्सपीरियंस पर्सन यू शुड गो फॉर द समरी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स, maximum 3 lines, not more than that. Okay, then comes the skill set. Skill set important है, starting में दिखाना है। Yes, it is important. Okay, whether you are fresher, whether you are experienced, but skill set, your competencies are very much important when I'm talking about CV. Okay, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने मेरे लिए एक स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंसी दोनों दिखाया है इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स, यहाँ पे बार चार्ट भी आप देख पाओगे। ठीक है, कि चलो मेरी टेक्नोलॉजिकल भी मैंने दिखा दिया, टेक्निकल स्किल्स कौन सी आती है एंड कॉम्पिटेंसीज रिगार्डिंग माय फील्ड। सो यू कैन मेक थिंग्स लाइक दिस एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रेंड्स विदाउट एनी डाउट। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है हाँ एटीएस के फॉर्मेट में बनाना है तो मेक इट वेरी सिंपल, बुलेट पॉइंट्स में डाल लीजिए, दैट इज फाइन, बट आपको कोर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज रखनी है। ठीक है, देन कम वर्क एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स मेंशन योर वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे जानबूझ के हमने क्या किया है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर जो है लोगो रखा है, तो जैसे कि मैंने आगे आपको बताया था डोंट मेंशन लोगो। वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने फंक्शंस करके सेपरेटली लिखा है, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखा है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, दैट्स अ रॉन्ग वे। जब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इसे कैप्चर करने की ट्राई करेगी तो ये सारी चीज़ों के वजह से दे विल बी नॉट एबल टू कैप्चर। So simply mention name of your company where you are currently working or you were working,
मेंशन द टेन्योर एंड योर डेजिग्नेशन, दिस थ्री थिंग्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, उससे उससे ज्यादा, एंड लोकेशन, इफ मल्टी लोकेशन है देन लोकेशन, इससे ज्यादा कुछ चीजें आप ज्यादा मेंशन ना करो। डोंट यूज द लोगोस, एंड बुलेट पॉइंट्स में नीचे आपकी जो भी प्रोफाइल है राइट इन बुलेट पॉइंट्स। ओके, वन मोर थिंग, जब हमने यहाँ पे रिव्यू में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाके अलाइनमेंट्स चेक किए थे तो हमें ये भी दिखा था। सो यहाँ पे जैसे कि बहुत लोग, मैंने स्पेसिफिकली डाला था कि वर्क टेन्योर में पहले ये टाइम में ट्रेनी था, उसके बाद आई वाज टेकन एज एन ऑफिसर, इसको एक टेबल में डाल के मैंने पेस्ट किया था। तो ये क्या होगा, जब भी मैं ये सीवी एटीएस के थ्रू अप्लाई करना जाऊँ, ट्राई करूंगा, नौकरी पे अपलोड करूंगा या कहीं पे अपलोड करूंगा, ये चीज रीड नहीं कर पाएगा, कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। ये जानबूझ के आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने गलती पहले की है और बाद में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, टेबल के अंदर ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। ओके, देन कम्स अबाउट द एजुकेशन डिटेल एंड सर्टिफिकेट्स। ठीक है, एजुकेशन के अंदर एक बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन रहता था सबका कि व्हाट शुड बी मेंशन, लाइक अगर हमारे परसेंटेज कम आए हैं, ठीक है, सपोज इन योर बैचलर्स यू आर नॉट गेटिंग अ गुड मार्क्स और इन योर 10th और 12th यू आर नॉट गेटिंग अ गुड मार्क्स, तो सिंपली सपोज ये यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो आई हैव नॉट मेंशन द परसेंटेज ओवर हियर, आई जस्ट मेंशन द क्लास, और यू कैन डायरेक्टली मेंशन द ग्रेड्स। ओके, अगर ऐसा है यू कैन, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू बी शॉर्ट लिस्टेड इन अ कंपनी ना, दे आर गोइंग टू गिव यू द फॉर्म्स एंड एट दैट टाइम यू नीड टू मेंशन इट, सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। एंड अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली पूछे कि कितने हैं तो आपको बताना है, बट अगर आप ऐसा चाहते हो, यू आर फीलिंग लाइक यार मुझे नहीं बताना है, आई एम गेटिंग वेरी लेस मार्क्स, then you can do like these things, and if you're getting some good marks like achieving something, yeah, you're the class topper or something, even that things you can be mentioned over here। बस इसको ज्यादा, इतना ज्यादा मत भरिएगा। अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज है उसको बुलेट पॉइंट्स में ले लीजिए, टेबल में मत लीजिएगा ये सारी चीजें। ठीक है, सिंपली मेंशन कीजिएगा। हाँ, यूनिवर्सिटीज एंड पास आउट ईयर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो वो आप विदाउट फेल मेंशन करिएगा। ठीक है, देन कम्स द लैंग्वेजेस। सो यू गाइज आर गोइंग टू आस्क मी यार कि लैंग्वेजेस मैटर करती है। यस, लैंग्वेजेस मैटर करती है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है, 3-4 लैंग्वेज जो भी आती है जस्ट मेंशन इट, बट उससे भी ज्यादा अगर कोई चीज मैटर करेगी, दैट आर द अचीवमेंट्स। वी यूजुअली डोंट राइट दोज थिंग्स। ओके, सीवीज में अचीवमेंट्स हम नहीं लिखते। ठीक है, यूजुअली वी डू जॉब आफ्टर, वी कैन से बैचलर्स के बाद। ठीक है, तो 12th तक पढ़ाई, 3-4 साल बैचलर्स, तो 15 साल का जो आपका एजुकेशनल जर्नी होगा उसमें आपने कम से कम 2 या 3 अचीवमेंट्स तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही। स्पोर्ट्स में होगा, म्यूजिक होगा, एजुकेशनल होगा, सोशल होगा, मेंशन दोज थिंग्स। ओके, अचीवमेंट्स तो कुछ ना कुछ होने ही वाले, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट मेंशनिंग दोज थिंग्स। ठीक है, तो आपके जो भी अचीवमेंट्स है प्लीज मेंशन इट, बिकॉज जब एज एन एचआर आई एम सीइंग समवन सीवी ना, अगर मैं किसी का सीवी देख रहा हूँ और अचीवमेंट्स आते हैं, मैं कुछ पढ़ता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है ये बाकी कैंडिडेट से थोड़ा अलग है। whether it is social, behavioral, music, not related to job, that is fine, but just mention। क्लास मॉनिटर हो, कम से कम वो भी मेंशन कर दो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, बट मेंशन योर अचीवमेंट्स, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देन कम्स द हॉबीज। अभी हॉबीज में मैं अभी नहीं कुछ बोलने वाला, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर दैट थिंग इन प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर ट्री। ठीक है, तो तब बात करेंगे। Common mistakes that we make in CV. So what are the common mistake actually that we are making in CV? First of all, spell errors and grammatical mistakes. That is what we are doing actually. कि सबसे ज़्यादा हम जब हमारा CV बनाते हैं, we neither give it to someone like हमारे seniors, colleagues, किसी के साथ share नहीं करते, and simply we used to share it with the HR or the company, direct हम वहाँ पे भेज देते हैं। That is the biggest mistake that we are doing. ओके, किसी के पास एक बार चेक करा लो, पता है आपका फ्रेंड है, कोई सीनियर है, हु इज हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका इंग्लिश अच्छा है, जस्ट शेयर विद देम, शेयर विद योर प्रोफेसर से एक बार सर चेक कर लो कैसा है। ठीक है, फेक स्किल्स। सपोज आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट सैप एंड आई एम मेंशनिंग दैट कि आई एम वेरी गुड एट सैप। सो ये चीजें नहीं करनी, जो चीजें आपको आती है वो ही लिखिएगा। जिंदगी में कभी चेस खेला नहीं है एंड यू आर गोइंग टू मेंशन दैट आई एम वेरी गुड एट चेस इन हॉबीज, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, पुअर फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग पुअर कैसे हो गया मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सो यहां हो जाता है पुअर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब आप समझिए,
यहाँ पे जो है फंक्शंस, इसका अलाइनमेंट देखिए कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं अलाइन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डार्क मैंने बुलेट्स यूज किए, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे वापस चेंज हो रहे हैं बुलेट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब आप एक सीवी बना रहे हो वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर फर्स्ट में आप जो यूज कर रहे हो बुलेट पॉइंट्स, वही आपको सेकंड में यूज करने हैं। अगर उसके अंदर भी बुलेट पॉइंट यूज करने हैं तो वो आपको सेम यूज करना है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग नहीं करना है, ये चीजें हमें समझनी है। लेंथ ऑफ द सीवी के बारे में भी सुनील इज आस्किंग। सो सुनील, लेंथ, इफ यू आर अ फ्रेशर, 1 or 2 पेज इज मोर देन इनफ, ओके। एक्सपीरियंस है देन मैक्सिमम ट्री, नॉट मोर देन दैट, ओके। And one more thing, can I lock formatting in Word file, Sunil? So, Sunil, why to lock your Word file? First of all, I don't understand that. This is not just your question. मुझे आगे भी पूछा था कि मैं अपना सीवी जो है वो सिक्योरिटी लॉक रखूँ क्या नहीं, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखूँ क्या नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड इफ पीपल आर गोइंग टू यूज योर वर्ड फॉर्मेट। सपोज सबसे बड़ा डर यही होता है, यार मेरा सीवी का फॉर्मेट चोरी हो जाएगा। सी, कोई आपका सीवी का फॉर्मेट चोरी कर सकता है, आपकी कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स कोई चोरी नहीं कर सकता। सो बी रिलैक्स, ओके। अगर कोई यूज भी कर रहा है पूरा उसको सेम नाम चेंज करके भी कहीं पे शेयर कर रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू क्रैक दोस इंटरव्यूज, ओके। सो टेंशन फ्री रहिए उसमें। देन कम्स नॉट फोकसिंग ऑन योर अचीवमेंट, जैसे कि मैंने आगे बोला था, मेकिंग योर सीवी टू लॉन्ग, पुटिंग द रॉन्ग कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अवॉइड अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे एक पॉइंट में ऐड करूंगा, देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड एंड उसने क्या किया था, उसके सीवी में शी हैज मेंशन्ड अबाउट हर हाइट एंड वेट, एंड जो जॉब प्रोफाइल के लिए वो अप्लाई कर रही थी उसमें उसका कोई रेलेवेंसी नहीं था। तो ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ठीक है। जो चीज़ें रेलेवेंसी ना हो, ठीक है, उनका क्लरिकल काम था तो उसके अंदर आई डोंट थिंक देयर इज एनी रेलेवेंस ऑफ हर हाइट एंड हर वेट। सो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें शेयर नहीं करनी है, ठीक है। So now we'll be talking about principle of Mr. Tree, and trust me friends, you're going to love this thing. Okay, what is principle of tree? Principle of tree कुछ नहीं है। Principle of Mr. Tree ये मैंने खुद ने बनाया था when I was applying for CAT and CMAT में, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन एट दैट टाइम। एंड प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर ट्रीज क्या है वो बता देता हूँ पहले। सपोज सी, सीवी में झूठ लिखना गलत नहीं है। अभी आप बोलोगे ये तो गलत चीजें सिखा रहा है, मेरी पूरी बात सुन लो। सीवी में झूठ लिखना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो झूठ पकड़ा जाता है तो गलत है, ठीक है। सो इन द सेम वे मिस्टर ट्री का प्रिंसिपल ये है। सपोज आई विल से माय हॉबी इज साइकिलिंग, ओके। मैंने हॉबीज में लिख दिया साइकिलिंग, मैंने जिंदगी में कभी साइकिलिंग नहीं की है, ओके। एंड अभी आप पूछो मुझे, मैं इंटरव्यू में बैठूंगा और मुझे पूछेंगे हॉबीज साइकिलिंग के बारे में, एंड आई विल बी नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो ऐसी चीजों से कैसा बचा जाए? एंड नॉट जस्ट हॉबीज, ओके। आप सीवी में जो भी लिख रहे हो, फ्रॉम योर नेम टिल योर हॉबीज, वॉट एवर यूर मेंशनिंग इन योर सीवी, आपको सब चीजों में प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर ट्री यूज करना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर एक चीज में। कैसे यूज करना है? जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, ओके, एंड यू आर जस्ट मेंशनिंग कि आपको MS एक्सेल आता है। तो जस्ट थिंक कि MS एक्सेल पे आपको कौन से 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर्स, ओके। दैट इज द बेसिक थिंग। आप इतनी प्रिपरेशन करोगे ना, आई कैन गिव इन राइटिंग यार कि आप बेसिक इंटरव्यू तो क्रैक कर ही लोगे। टेक्निकल भी हो जाएगा अगर टेक्निकल में भी आप ये प्रिंसिपल यूज करो तो। आपका जो भी आप टेक्निकल आपका बैकग्राउंड है, सपोज यू आर फ्रॉम BCom, ओके, ऑडिटिंग के रिलेटेड चीजें आपने मेंशन की है, तो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो पूछ सकता है। और अगर आपने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली कि ये 3 हो सकता है और उसका आंसर मैं ये दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका रिसर्च जो है वो बहुत हाई हो जाएगा रिगार्डिंग दोस थिंग्स, and that is going to help you friends. So whenever you prepare for any interview, प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर ट्री जो है वो आप यूज करिएगा, ठीक है, सीवी में भी उस हिसाब से। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा जो सीवी है, ठीक है, हम क्या रखते हैं उसको यूनिवर्सल रखते हैं। कहीं पे जॉब आई, सिंपली वो जो फॉर्मेट होता है हमारा वर्ड PDF वॉट एवर इट इज, वी यूज टू शेयर इट। ये email आया है, इस पर शेयर कर दो। ये गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स। इफ यू आर हैविंग द जॉब डिस्क्रिप्शन ना, तो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन कवर हो रहा है या नहीं मेरे सीवी में। सपोज देयर इज अ वैकेंसी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
लर्निंग एंड डेवलपमेंट लेटस से, ठीक है। तो मेरे सीवी में देख रहा हूँ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में मैंने सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है, बट इन केस मैं कर रहा हूँ ओके इन माय रियल लाइफ में लर्निंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा एलेबरेट नहीं किया, मैं सिंपली सीवी भेज देता हूँ, तो मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट होने का चांस कम है, ठीक है। तो whenever you are applying, wherever you are applying, first of all you try to see whether job description is available or not, or if it is available then उस हिसाब से आपका CV सबसे पहले तो एडिट करो as per the job requirement, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से आप एडिट करोगे इट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू, आपका CV 101% शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, ओके। So we'll be moving to the last parts, okay, but before that there are other few things that I like to share with you regarding the formats. ATS की मैंने आगे बात की थी, तो उसके रिलेशन में ही मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को जो गलतियाँ हम यूजुअली करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अलग कलर लिया है, तो जब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू मेरा CV स्कैन होगा अलग कलर है तो देयर आर हाई चांसेस कि ये कैप्चर नहीं होगा, ओके। देयर इज वन मोर सैड पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो कलर ब्लैक ही रखना है और सबका सेम रखना है, ठीक है। वेन एवर यू आर अप्लाइंग ऑन ऑनलाइन पोर्टल्स, कलर अलग नहीं करना, बुलेट पॉइंट्स में हमें रखना है, ठीक है। अवॉइड हेडर्स एंड फूटर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेजेस रखी है इन माई फूटर, आई विल शो यू, ओके। या यू विल बी एबल टू सी दिस इज माई फूटर बेसिकली। तो यहाँ पे एक्चुअली इमेज रखी है मैंने, तो ये गलती नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। इमेज या कुछ भी ना लिखो वहां तक अच्छा है, मेक इट सिंपल। हाँ, अगर क्रिएटिव करना है कुछ अलग रखना है लिख सकते हो, बट इमेज तो एटलीस्ट मत लिखिएगा, मैन्युअली कुछ आप लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज मोर बेटर ऑप्शन, ओके। एंड प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यार यू गाइज आर लविंग इट और नॉट, because this is the only motivation that I get on Sunday, and especially जब इंडिया एंड पाकिस्तान की मैच होने वाली है शाम को, वो वाला संडे हो and sparing time for all of you is something that I cannot express in words. One more thing, don't use fancy phones while writing your CV, ठीक है। फैंसी फोन्स आपको यूज नहीं करने हैं, हेडर फोटोज में ज्यादा यूज मत कीजिए आप, डोंट कलर योर टेक्स्ट, मेक इट एज नीट एंड टाइडी, ठीक है। जितना नीट एंड टाइडी कर सकते हो उतना नीट एंड टाइडी रखिए, टेबल्स ज्यादा ना हो, ये भी टेक केयर कर लीजिएगा आप, ओके। एट द एंड व्हाट आई लाइक टू शेयर इज लाइफ इज जस्ट लाइक चेस। एज एन HR मेरे पास जब किसी का CV आता है आई यूजुअली डोंट जज इट, ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज लाइक चेस। जैसा घोड़ा है वो ढाई कदम चल सकता है, ठीक है। हाथी है तो वो सीधा चल सकता है, लाइक रो वाइज चल सकता है, रानी जो है वो कहीं भी जा सकती है, ठीक है। कैमल जो है वो क्रॉस में चल सकता है। सो ईच एंड एवरी कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू मी इज हैविंग सम और द अदर स्पेशल स्किल्स, ओके। And last but the major learning for the day, that life is not fair with everyone, so keep patient and should always do self learning, okay। and जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इवन आपके जो क्वालिटी स्कोर्स है वो मैं सिखाने वाला हूँ, so उसके पहले आई जस्ट नीड टू शो, ये नौकरी की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी what is ATS. They have mentioned even Naukri portal are using applicant tracking system software, so that might be a reason कि आप इतना अच्छा CV बना रहे हो and then also इसकी ranking अच्छी नहीं आ रही and you are not getting a call from a recruiter. So try the simple format and I guess it's going to work, okay। Second thing, how to check your quality score of a CV. वो इसमें क्वालिटी स्कोर में बेसिकली कैसे करना है, तो सबसे पहले आपका जो नौकरी है वो आपको लॉग इन करना है यहाँ पे, ठीक है। नौकरी लॉगिन करने के बाद यू नीड टू गो टू द सर्विसेज में आप देख सकते हो यहाँ पे रेज्यूम क्वालिटी स्कोर फ्री, सिंपली क्लिक ऑन दैट, ओके। सिंपली क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने PDF लिखा है बट आपको वर्ड फॉर्मेट ही अपलोड करना है,
बट मैं तो यहाँ पे अभी फैच कर रहा हूँ, मैंने नौकरी पे अपलोड करके रखा है. आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम, सो डायरेक्टली फैच होके आई विल गेट द स्कोर्स. सिंपली यू कैन ड्रॉप योर सीवी ओवर हियर एंड यू विल गेट द स्कोर. सो लेट अस सी मेरा कितना आ रहा है स्कोर. तो ये मैंने जो पूरा गलत रेज्यूम बनाना है उस हिसाब से माई स्कोर इज 58. एंड समरी, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी भी मिल रही है. जैसे कि आपने मेरे सीवी में देखा था, फोन स्टाइल एंड लाइन स्पेसिंग अक्रॉस योर रेज्यूम इज नॉट कंसिस्टेंट. तो ये देखना है कि कंसिस्टेंट है. सबसे पहले यू मे वांट टू क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स फॉर बेटर क्रेडिबिलिटी. यू मे वांट टू इंक्लूड सम फंक्शनल कीवर्ड्स because Naukri is not able to identify the functional keywords. That is the reason Naukri is suggesting me this. So this feature is going to help you. जब आपका CV पूरा बन जाता है, try this friends. I'll be showing you one more way to make CV. ठीक है, अगर आपको इन्फोग्राफिक अच्छा, एकदम अच्छा CV बनाना है, that usually people YouTube में और उसमें आप देखते हो, ठीक है, तो ये कोई नहीं बताने वाला, बट ये सबसे easy way है. ठीक है, मेहनत कम है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो कैनवा इज द नेम. मोबाइल एप्लीकेशन भी है आई गेस, एंड यू कैन यूज इट ऑन योर डेस्कटॉप ऑल्सो. सो गो टू कैनवा, यहाँ पे रेज्यूम सर्च कीजिए सर्च बॉक्स में, एंड यू विल बी एबल टू सी लाइक थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट रिलेटेड टू सीवीज. तो अभी इसमें फ्री वाला कौन सा है और पेड कौन सा है? तो जिसमें कि आपको ऐसे क्राउन दिख रहा है ना फ्रेंड्स, दैट आर द प्रो वर्जन एंड पेड. तो हमें वो क्राउन वर्जन सिलेक्ट नहीं करने. ठीक है, तो ये दिस इज अ फ्री वर्जन. आई सिंपली क्लिक ऑन दैट. ठीक है, सिंपली मैंने क्लिक किया है फ्री में. सो इट विल गेट ओपन एंड यू कैन एडिट each and everything over here, from photos to text to each and everything वन पेजर में. एंड यू कैन इवन डाउनलोड इट फॉर फ्री. जेपीजे फॉर्मेट इसका आप फ्री में डाउनलोड कर सकोगे. ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी इमेज रखनी है. यू कैन राइट योर नेम, योर प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स में भी आप. ठीक है, एंड इट्स नॉट जस्ट वन पेज है, ड्यूअल पेजेस है. सो इवन द कवरिंग लेटर इज इंक्लूडेड. सो इफ यू वांट टू डू लाइक, आपको वर्ड इज, यू आर नॉट वेरी मच वर्ड में आप कंफर्टेबल नहीं हो, then you can even use this Canva website for free. And just after changes like editing, I'll just mention Sunil, because Sunil is the only reason that I have done this session. Okay, Sunil Patil. and मैं पूरा edit तो कभी करने नहीं बैठने वाला. I'll just zoom it कि आप लोग थोड़ा देख पाओ. So ये बहुत ही decent लगेगा if you're directly applying to any organization. ठीक है, you can go for this friends, and simply after doing editing click on download. ठीक है, PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो, PNG में भी कर सकते हो, JPG में भी कर सकते हो. So I guess this is good. फ्री है तो कर सकते हो फ्रेंड्स. and thanks a lot for joining today. I hope मैंने जो आज आपके साथ सारी चीज़ें जो शेयर की है, that is going to be a value addition. and हाँ, मैंने जो templates बोले थे that I'm going to share with all of you, I have already shared it. आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए and you will be able to see a Google Drive link for 3 templates करके Google Drive की एक लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर की है. So just click on it and you will be able to see like मैंने कितने 15 या 20 जैसे CV के फॉर्मेट्स, PPT, Word एज वेल एज एडोब के जो फॉर्मेट्स है वो मैंने 3 अलग अलग फॉर्मेट्स शेयर किए हैं. एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू आई गेस. एंड थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग. You can follow me on LinkedIn as well as subscribe my channel if you like my content, and have a good day ahead.